Good morning to all. You all are welcome in the Circuit Heart School e-learning classes. Today in this video we will discuss about the very important phenomena of inorganic as well as organic chemistry, that is resonance. And this resonance also known as the mesomerism. And so in this video we will discuss about this phenomena of resonance along with the suitable examples. Before starting the resonance phenomena, we should know the meaning of term localized as well as the delocalized electron. The localized as well as delocalized electron. How you can explain the term localized? Localized means whenever the electron pair is present between the two participating atom in a form of the bond. Example, in this example, this is methylamine, and these electron pair carried by this ammonia and this NH2 molecule, which is the derivative of the ammonia. And whenever this electron pair is donated by this ammonia, and this electron pair may be present between these two participating atoms. Like as in this example, and between the CH as well as the CH2 molecule, the double bond is present, and these double bond is sigma as well as pi bond. So the electron present in this sigma and pi bond are said to be the localized electrons. So you should remember before starting the resonance phenomena, and this term must be clear to you. Clear? And now I am going to explain the meaning of term, that is the delocalized. And for this purpose we will take the examples of this compound, and this is the CH3COOH. In this molecule the electrons may be present, one double bond is present between this C as well as O bond. यहाँ H को indicate नहीं किया है, तो this is the O negative, and double bond keeps on moving between this O, C as well as O atom. So these tendency of electron to move from one place to other place, or you can say among these three atoms, that is O, C and O, the tendency of the electrons to flow among these three atoms, and these electrons known as delocalized electron. तो याद रखिएगा, the phenomena of localized means the electrons which are present inside the bond, and the phenomena of delocalized means the electrons which are present, which have a tendency to move from one atom to other atom. तो याद रखिएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कभी नहीं होता है, and mostly the shifting of the pi electrons take place from one atom to other, and this tendency, these type of the pi electrons which have a tendency to move from one atom to other atom are said to be delocalized. Now I am going to explain the meaning of benzene. The benzene is the most important aromatic compound, and which are used to obtain the n number of the organic compound. All such compound which we can derived from the benzene known as benzenoid compound, or simply you can say phenyl compounds. So basically why the benzene is important for us? Why we are talking about this benzene? Because this is the first compound for which the resonance phenomena is discovered, or you can say to explain the structure of the benzene, the phenomena of resonance is discovered. अब क्या होता है बेंजीन, क्या इसकी प्रॉपर्टी है? अब बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, and it is made up of the 6 carbon atom, or these carbon atoms are present in this hexagon. So basically this benzene is the structure of this benzene can be explained on the basis of the resonance phenomena. Now we will discuss how this benzene is invented, कैसी इसकी प्रॉपर्टी होती है. तो this is the basic frame of the benzene.
in which all 6 carbon atoms are present at the corner. From each carbon atom, one H atom is also present there. And the state of hybridization, आपने पढ़ा है the concept of the valence bond theory में, the state of hybridization of each carbon atom is sp2. तो बेसिकली हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. तो जब p ऑर्बिटल का ऊपर वाला पोर्शन है और जो p ऑर्बिटल का नीचे वाला पोर्शन है, एंड दीज टू पोर्शन ओवरलैप टुगेदर टू फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस रिंग. क्लियर? जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला लोब है p का, वो भी आपस में ओवरलैप करके एक कॉन्टिन्यूअस रिंग को फॉर्म कर देता है. तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑल 6 कार्बन ऑफ द बेंजीन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. तो अगर मैं हर कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑब्जर्व करता हूँ, तो 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड सेटअप हो जाएगा तो वो नेक्स्ट 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सेटअप नहीं होगा. जैसे इस स्ट्रक्चर के बेस में यहाँ डबल बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड पॉसिबल है, इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल है, और जिनको मैंने इग्नोर कर दिया है वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होंगे. तो व्हेनेवर the formation of the double bond take place between the 2 carbon atom, the bond length is decreases. On the other hand, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट हैं, उन पर्टिकुलर साइट पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए. बट इन कंट्रास्ट, whenever we calculate the total bond length of all 6 carbon atom, and this bond length is equal to each other. तो यहाँ पर 6 के 6 कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है. तो डबल बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी 3 कार्बन के बीच में 1 डबल बॉन्ड, मे बी सेकेंड डबल बॉन्ड, मे बी थर्ड डबल बॉन्ड. तो आप अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एज्यूम करते हो तो बॉन्ड लेंथ आर सपोज टू बी डिक्रीज. ऑन द अदर हैंड, जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर बॉन्ड लेंथ स्लाइटली ज़्यादा होगी. बट इन कंट्रास्ट ऑल 6 कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग हैव द इक्वल बॉन्ड लेंथ. सो वी कैन से the probability of the double bond exhibit by all carbon atom of this benzene. तो या तो हमारी थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रॉन्ग है, या कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपका रॉन्ग है, या फिर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्ट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते. एंड दैट्स वाई फॉर टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड बेसिकली द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस इज इन्वेंटेड. In benzene, overall, what points we will conclude about this benzene? So benzene is a planar molecule, have 6 identical carbon-carbon bond, यहाँ पर indicate किए हुए हैं. Each electron is shared by all 6 carbon, and the electrons are delocalized. Electrons are delocalized. I have explained the meaning of term delocalized. Electron double bond के जो इन 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव थ्रू आउट द बेंजीन रिंग, क्योंकि हर एक के पास एक p एटॉमिक ऑर्बिटल है, एंड थ्रू दिस p एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. सो ऑल 6 कार्बन हैविंग इक्वल टेंडेंसी थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. सो टेंडेंसी ऑफ द delocalization is exhibited by all 6 कार्बन ऑफ दिस बेंजीन. नाउ अब डबल बॉन्ड की पोजीशंस को आप किस तरीके से इंडिकेट करेंगे? द रेजोनेंस, कंट्रीब्यूटर्स एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड. यहाँ पर मैंने कार्बन की नंबरिंग करी है 1 2, दिस इज 3 कार्बन, दिस इज 4, दिस इज 5th एंड 6th कार्बन. इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में सेटअप हो सकता है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा. इफ़ द कार्बन नंबर 1 और 2 एग्जिबिट या फॉर्म द डबल बॉन्ड, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड सेटअप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वाला p एटॉमिक ऑर्बिटल और 1 कार्बन का p एटॉमिक ऑर्बिटल डबल बॉन्ड बना चुके हैं और बोथ साइड ओवरलैप कर लेंगे. तो अब 3rd और 4th के बीच में डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होगी, ऐसे ही 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो क्या ये ज़रूरी है कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड सेटअप हो? एंड दिस इज नॉट इसेंशियल डबल बॉन्ड सेटअप बिटवीन द 3rd and 4th कार्बन. And in the same way, double bond is formed by 5 and 6 carbon. And this property is also possible कि कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 भी तो डबल बॉन्ड सेटअप कर सकते हैं.
कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 डबल बॉन्ड सेटअप कर लेंगे, एंड कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 1 डबल बॉन्ड सेटअप करते हैं। तो अगर उन डबल बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी को आप इस रिंग पर अप्लाई करते हो तो बेसिकली इन डबल बॉन्ड की पोजीशंस को यहाँ पर इंडिकेट किया है। तो इस स्ट्रक्चर को लेकर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, इस स्ट्रक्चर को लेकर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड की, तो यहाँ अगर 1 and 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सेटअप हुआ है तो बॉन्ड लेंथ शुड बी डिक्रीज, तो 3rd and 4th कार्बन की डबल बॉन्ड ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ तो 2 and 3rd के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 and 2 कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एंड 2 और 3 की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को सही माने तो आपके डबल बॉन्ड लेंथ का, दोनों बॉन्ड लेंथ का इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको सही मानता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ भी 2 कार्बन के बीच में इक्वल नहीं होगी। बट इन कंट्रास्ट whenever we compare the total bond length of this benzene ring, तो all 6 carbon having the equal bond length, so we can say the tendency to form double bond हर कार्बन की इक्वल होती है। तो दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट एंड दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट, बट एक्चुअल में दो स्ट्रक्चर के बिना हम बेंजीन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहे कि बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं होता तो बेंजीन अंडरगोज द एडिशन रिएक्शन। अगर कोई आपसे कहता है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं है तो डबल बॉन्ड नहीं के अगेंस्ट हमारे पास क्या एविडेंस है? द एडिशन रिएक्शन इज फॉर्म्ड बाय बेंजीन। जब बेंजीन पे क्लोरीन लाइक मॉलिक्यूल, बेंजीन पर H2 लाइक मॉलिक्यूल आप ऐड करते हो तो डबल बॉन्ड के टूटने से ऑल 6 कार्बन attach the chlorine and all 6 carbon may attach the hydrogen and this can form the cyclohexane। अगर हाइड्रोजन अटैच करोगे, अगर क्लोरीन को अटैच करोगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को फॉर्म करता है। तो इसका मतलब बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। लेकिन डबल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए हमारी ये फॉर्म भी करेक्ट है और हमारी ये वाली फॉर्म भी करेक्ट है, एंड दीज 2 स्ट्रक्चर्स which are required to explain all the properties of the benzene that known as resonating structure, and इनको मिला के जो डॉटेड लाइन यहाँ पर इंडिकेट की गई है ये इन 2 स्ट्रक्चर को मिला के बनाया गया है। एंड दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट दैट कि डबल बॉन्ड इज कीप्स ऑन मूविंग अमंग 6 कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। सो वी कैन से एंड दीज 2 hypothetical structure which are required to explain the property of the benzene and that known as resonating structure. So how you will conclude the resonance phenomena? The phenomena in which more than one hypothetical structures are required to explain all the properties of the compound like as benzene। वो हाइपोथेटिकल फिनोमेना जिसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड दिस फिनोमेना नोन एज फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। इज ए क्लियर? लेकिन रियल में बेंजीन एक ही होती है। अगर मैं सिंपल वे में इस रेजोनेंस के फिनोमेना को आपको बताऊं तो क्या बताऊंगा? अगर मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज आप एक क्लास 11 के स्टूडेंट हैं एंड अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहा हूँ तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। बीइंग अ सन यू आर ऑल्सो गुड, यू आर ऑल्सो वेरी गुड सन, एंड बीइंग अ स्टूडेंट यू आर वेरी गुड इन स्टडी, और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं आपको देखता हूँ तो आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं। तो मुझे अगर आपकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है तो एज ए स्टूडेंट एक पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। मुझे एज अ सन आपकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है तो एज ए सन एक पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी, और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है तो मुझे एक पिक्चर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपकी ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेकिन रियल में तो आप एक ही हैं ना। तो एक पर्सन की और सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टू ड्रॉ द 3 पिक्चर्स एज ए स्टूडेंट, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ गुड सन। तो याद रखिएगा तीनों स्ट्रक्चर के बिना मैं आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आपकी जो 3 जो मैंने ड्रॉ करी है स्ट्रक्चर वो हाइपोथेटिकल है क्योंकि रियल में तो आप एक ही हो, एंड दीज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर which are required to explain your property that known as resonating structure, and this phenomena in which more than one forms are required to explain the properties of all compound that known as resonance phenomena, or simply you can say
the phenomena of the mesomerism. Is it clear? तो this phenomena of mesomerism is very important, जो बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्वेंट किया गया था। सबसे पहले बेंजीन को हमने आइसोलेट कहाँ से किया था? तो बेंजीन एक रिंग कंपाउंड होता है जो 6 कार्बन का बना होता है, और स्नेक्स के वेनम से, आपको मालूम है स्नेक्स के पॉइजन को हम वेनम कहते हैं, तो वेनम से सबसे पहले बेंजीन को आइसोलेट किया गया था। एंड बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए केकुले, केकुले वाज द फर्स्ट पर्सन हु कोइन्ड दिस टर्म रेजोनेंस। क्योंकि अगर बेंजीन एक्सप्लेन करना था तो हमें कम से कम 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी थी। तो याद रखिएगा, द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज इन्वेंटेड बाय द केकुले एंड टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन, एंड दिस बेंजीन फर्स्ट टाइम isolate from snake's venom. Is it clear? Now we will discuss about all essential conditions for the resonance. First condition, resonance contributors are imaginary but the resonance hybrid is real. ये हाइपोथेटिकल पिक्चर है, ये हाइपोथेटिकल पिक्चर है, बट इन दो को कंबाइन करके आपने इसको ऑब्टेन किया, एंड दिस इज द रियल पिक्चर, वन पार्ट ऑफ द रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस का फिनोमेना करना है तो एक हमारे पास स्टेबल फॉर्म भी होनी चाहिए, आप उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हो। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, कंपाउंड मस्ट हैव द प्लेनर स्ट्रक्चर, कंपाउंड मस्ट हैव द प्लेनर स्ट्रक्चर। जैसे ये कंपाउंड यहाँ बनाया गया है, दिस इज साइक्लोसिस्टेरीन, ये आपका कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इसमें हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो अगर इनके बीच में ओवरलैप नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये रेजोनेंस का फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होगा। तो वन बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पॉसिबल, एंड दूसरी क्या बेसिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एंड कंपाउंड मस्ट हैव द प्लेनर स्ट्रक्चर। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस। मेरे सामने कंपाउंड है, दिस इज नाइट्रोइथेन, दिस इज CH3CH2NO2। अभी आपने C एंड O के बीच में डबल बॉन्ड को इंडिकेट किया। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से लौट के यहाँ आएगा तो ये N जो है अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ दे देगा। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन, अगर ये O का नेगेटिव चार्ज अपने एक चार्ज को यहाँ शिफ्ट करता है तो इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इस O की तरफ हो जाएगी। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हाट यू विल नोटिस, अब डबल बॉन्ड NO के बीच में आ गया, एंड दिस O विल रिटेन द नेगेटिव चार्ज। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाट यू विल कंक्लूड दैट, ये डॉटेड लाइन से क्या इंडिकेट कर रहे हो आप कि डबल बॉन्ड हैव अ टेंडेंसी टू मूव among these three atoms, that is oxygen and this nitrogen as well as this oxygen. So this is the resonating structure, hybrid structure है, and the first resonating structures of this nitroethane, and this one is the second resonating structure of this nitroethane. तो याद रखिएगा, सारे मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना पॉसिबल है, बट व्हाट बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, द कंपाउंड must have planar structure, one property. Second property, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कर पॉसिबल हो एक जैसे कार्बन के एटम्स के बीच में और किसी और एटम्स के बीच में। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एटम अपनी पोजीशन चेंज ना करें। सिग्मा बॉन्ड की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है वन एटम से दूसरे एटम की मूव करने की। So how you will conclude the phenomena of resonance, and what basic conditions are required to explain the property of this resonance? तो याद रखिएगा, कंपाउंड का प्लेनर स्ट्रक्चर, delocalization of the pi electron is possible, and atom must have the fixed position, और उनकी पोजीशन किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होनी चाहिए। So in the nutshell, I will conclude all the rules for resonance. Only pi electrons can move. Only pi electrons can move. Second, only electrons and lone pair can move throughout the structure. And the total number of electron in the molecule does not change.
आपके मॉलिक्यूल या एटम का नंबर नहीं बदलना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट चेंज। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपके लोन पेयर का नंबर भी एक दूसरे के इक्वल हो, फर्स्ट स्टेशन से लेके एंड लास्ट फॉर्म तक। few more points which are required to explain the property of this resonance, that is move electron towards a positive charge or towards the bond। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ होता है। जब किसी भी आप पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर होगी तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। मूव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ बॉन्ड, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उस तरफ होगा जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मूव अ सिंगल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ बॉन्ड, एक लोन पेयर हमेशा इन्वॉल्व होता है कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि मैंने जो ये लास्ट एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, इस O का एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इस N की तरफ शिफ्ट हुआ तो N पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर टेक प्लेस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, दैट इज नाइट्रोजन। और जब एक बॉन्ड शिफ्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग O की तरफ हो गई। तो इसका मतलब जो बॉन्ड होता है उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा O का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट N की तरफ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म यू कैन ऑब्टेन अगेन। तो दीज आर द बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजोनेंस। इज इट क्लियर? तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस contributors are obtained by moving electron towards a positive charge। यहाँ पर भी वही बात बताई गई है जो मैंने रिपीट की है अभी तक कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की तरफ हो रही है, यहाँ प्लस चार्ज है, और इसी प्लस चार्ज पर इस वाले डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, और शिफ्ट होने से डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर ही शिफ्ट होते हैं। टू बेटर एक्सप्लेन दिस रेजोनेंस, द बेस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी बताई गई है। और अगर मैं इस बेंजीन की बात करता हूँ तो इस बेंजीन के अंदर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है। जब इस वाले CH2 पे प्लस चार्ज आया तो इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ हो जाएगी। डबल बॉन्ड यहाँ एक प्लस चार्ज, फिर इस वाले बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ होगी तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ से हो जाएगी, और पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। तो दिस इज द वन फॉर्म ऑफ द रेजोनेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन प्लस चार्ज की तरफ दिखाया गया है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉलुइन आर थ्रू विच यू कैन एक्सप्लेन ऑल द बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फिनोमेना ऑफ द रेजोनेंस। सो few basic points you should note down. During resonance, electrons move towards sp2 hybridized carbon but non towards the sp3 hybridized carbon। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब उस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल हो, तभी तो आप लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर पाओगे। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पर कोई अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ही नहीं, और ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस का फिनोमेना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन, इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर एडेड टू नॉर रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल व्हेन रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स आर ड्रॉन। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए ना तो हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन हम मॉलिक्यूल से रिमूव करेंगे। द मॉलिक्यूल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं और जो बॉन्ड के पेयर्स हैं, एंड ओनली दोज इलेक्ट्रॉन पेयर्स मे बी शिफ्टेड फ्रॉम one atom to other atom whenever we draw the various resonating contributors या structures of any particular compound. Next point, the radicals can also have delocalized electron if the unpaired electron is on a carbon adjacent to the sp2 hybridized atom।
तो बेसिकली रेडिकल्स क्या होते हैं? एनी चार्ज ऑफ द एनी फ्री लिविंग स्पीशीज विच आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट नोन एज रेडिकल. तो रेडिकल्स कैन ऑल्सो हैव द delocalized electrons if the unpaired electron is on a carbon adjacent to the sp2 hybridized carbon. तो मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमेशा उस कार्बन की तरफ होगी, चाहे वो कार्बन का रेडिकल्स का इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना हो, जहाँ पर जिस साइड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट होगा. तो दीज आर द बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्लियर? नाउ अगेन हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम उसी पॉइंट पर आ गए. द डिफरेंस बिटवीन द लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को आप लोकलाइज्ड कहते हो, और जो इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं दे आर द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर? तो डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. सो in the nutshell, at the end of this video, I would like to conclude the phenomena of resonance, the hypothetical phenomena which are required to explain the property of the compound. जिस phenomena में आप एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ करते हो, एंड दैट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमिना नोन एज रेजोनेंस. तो रियल में रेजोनेंस किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करने वाला फिनोमिना है. एंड द बेसिक वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ दिस रेजोनेंस you will discuss in detail whenever you will discuss the chapter basic concept of organic chemistry. And not only in that chapter, in coming classes, and without the resonance you cannot explain the properties of the various aromatic and aliphatic compounds. Thank you.